Good evening everyone. Okay, so in last class or up to last class, what we discussed in human reproduction, as you know already that we are dealing with human reproduction, right? So what we dealt with till now in human reproduction, if you recall, हमने एज अ टॉपिक प्राइमरी टॉपिक के तौर पे या मेन टॉपिक के तौर पे हमने कौन सा टॉपिक इनिशिएट किया है अभी? स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और यू कैन जस्ट से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज द टॉपिक दैट वी आर इनटू इन, राइट? what we discussed related to male reproductive system till this point, particularly अगर मैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बोलूँ तो इस पॉइंट तक हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या हमने उसमें डिस्कस किया है? सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स, ऐसा हम बोल सकते हैं। उनके पोजिशनल रेफरेंस में तो उनको पढ़ा ही है कि वेयर दे आर लोकेटेड, व्हाट दे डू, मे बी इसमें से कुछ चीज़ें नहीं हमने पढ़ी तो ठीक है, लेकिन क्या कम से कम पूरा पढ़ के हो गया है? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स एंड वेयर दे आर लोकेटेड, राइट? पहले से लेकर लास्ट तक अगर हम उनको मतलब एनलिस्ट करें तो सबसे बाहर जो थिन स्किनी डार्कली पिगमेंटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसके अंदर टेस्टीज लोकेटेड होती है, उसको हम स्क्रोटम कहते हैं, राइट? टेस्टीज की जब बात आती है तो टेस्टीज हैज 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स ओवर इट्स सरफेस रेस्पेक्टिवली. इफ वी काउंट देम outer to inner, they are tunica vaginalis, tunica albuginea and tunica vesiculosa, correct? Inside testes also we viewed diagrammatically and discussed too that there are many small compartments, each of them is called testicular lobule, right? And these testicular lobules are how many in number? On an average 200 to 300 in number, and each of them contains highly coiled structures that we are going to discuss today in detail, called as seminiferous tubules, a site for spermatogenesis or sperm formation. How? We will learn. Okay. All the seminiferous tubules from each testicular lobule unite to form a network-like structure. That network-like structure formed by unification of the all seminiferous tubules is then called rete testes, right? And the rete testes, which is a network formed by seminiferous tubules inside scrotum but outside testes, right, gives rise to a single tubule like structure which you call vasa. vasa के बाद वाला important है इफ्रेंशिया की डिफरेंशिया, इफरेंशिया पहले ई बाद में डी, ओके? उसके बाद vasa इफ्रेंशिया is a short tube. It leads to a highly coiled tube which runs along the length of testes. You call it epididymis, respectively has upper, middle and lower part represented as caput, corpus and cauda epididymis, that ultimately leads to a long tube like structure that runs or passes over the surface of ureter. What is that called? Vasa differentia this time. Now comes the part or a duct which is called ejaculatory duct, and here was the important question that we discussed कि ejaculatory duct is a common duct formed by unification of, ये चीज़ हमने diagrammatically भी देखी है, by unification of vasa differentia and duct coming from seminal vesicle. Seminal duct is the proper name for that duct. So seminal duct from seminal vesicle and vasa differentia unites to give rise to a common duct called
ejaculatory duct which carries the components secreted by seminal vesicle on one hand and vasa differentia on other hand, right? Where do this ejaculatory duct open itself? In urethra, that is coming out of urinary bladder, correct? The same urethra then passes through the next glandular structure related to male reproductive system, which is prostate gland, an unpaired gland. Single seminal vesicles दो है, ejaculatory ducts दो है, दोनों तरफ से दो आएंगे ना, तो दोनों ejaculatory duct किधर ओपन होते हैं? यूरेथ्रा. And the same urethra then enters into a single or unpaired gland of the male reproductive system, that is prostate gland. And in prostate gland, what is added into the urethra? The secretion from prostate gland, right? Means at this point urethra contains secretion from testes, secretion from seminal vesicles and secretion from prostate gland. The same urethra then comes out of the prostate gland and enters into penis. The part of urethra that lies inside penis is particularly called penile urethra. लिखा था, पढ़ा था. It is the longest part of urethra. ये भी तुमको बताया था. कौन सा पार्ट या कौन सा हिस्सा यूरेथ्रा का लॉन्गेस्ट होता है? जो पेनिस के अंदर पाया जाता है. व्हाट इज पेनिस? स्ट्रक्चरली हमने डिटेल में पेनिस को नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे, बट पेनिस ओवरऑल क्या है ये तुमको बता चुका हूं मैं. व्हाट इज पेनिस? It is a male copulatory organ. Remember, it is not male primary sex organ. It is testes. Primary sex organ for male is testes. Copulatory organ for male is penis. Why it is called copulatory organ? Because it helps in copulation process. What is copulation process? Copulation process simply means the process of depositing semen into फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, दैट इज कॉल्ड कॉप्यूलेशन. एंड ये काम करने में जो ऑर्गन हेल्प करता है उसे हम सिंपली क्या कहते हैं? कॉप्यूलेटरी ऑर्गन मेल का, दैट इज पेनिस. बट देयर वाज अनदर थिंग. द पार्ट ऑफ यूरेथ्रा दैट इज लाइंग बिटवीन प्रोस्टेट ग्लैंड एंड पेनिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड एज मेम्ब्रानस यूरेथ्रा, इफ यू रिकॉल. And in that part of urethra, that is membranous urethra, what opens? Picturization लाओ आंखों के सामने. What opens? Bulbourethral or Cowper's gland through its own duct opens in that part of urethra. Which part of urethra? Membranous urethra. To which part of urethra you call membranous urethra? The part that lies between prostate gland and penis. Finally, the urethra which is passing through penis open outside the body through urinogenital aperture. अगर तुम रिप्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में बोल रहे हो तो तुम उस अपर्चर को बोलोगे जेनाइटल अपर्चर. अगर तुम एक्सक्रीटरी सिस्टम के कंटेक्स्ट में बोल रहे हो तो तुम उस अपर्चर को बोलोगे यूरिनरी अपर्चर. क्योंकि ह्यूमन मेल्स में एक ही अपर्चर के थ्रू यूरिन और सीमेन दोनों बाहर निकलते हैं, हम उस अपर्चर को कंबाइनिंगली क्या कहते हैं? यूरिनोजेनाइटल अपर्चर. ये बात हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी डिस्क्राइब कर चुके हैं. तो इस तरह से 3 ग्लैंड्स और बाकी कंपोनेंट्स मिला के बनती है पूरी की पूरी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. इसको छोड़ के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल हिस्सा नहीं है. जैसे फीमेल्स में मैमरी ग्लैंड्स एडिशनल हिस्सा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का. मैमरी ग्लैंड्स को भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा माना जाता है, हालांकि वो बाकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ लोकेटेड नहीं होती. जैसे आपको पता है मैमरी ग्लैंड्स आर लोकेटेड इन थोरैक्स रीजन and other parts of reproductive system are located in lower abdomen region or pelvic region. So there is nothing like that in case of males. The whole reproductive system is located in pelvic region that we just described again. Okay. Now our motive was very clear in last class too.
in the last part of the last class I described this, that there is nothing to discuss about scrotum anymore beside the facts that we discussed already. Then comes testes. तो testes में कवरिंग्स बता दी है आपको लोकेशन के साथ, फंक्शन बता दिया, गवर्नैकुलम बता दिया, कंपार्टमेंट्स बता दिए, बाकी सब कुछ हो गया. बचा कौन? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो हमको डिटेल में डिस्क्राइब करने हैं. रेट टेस्टिस नथिंग टू डिस्क्राइब, वैसा इफरेंशिया नथिंग टू डिस्क्राइब फंक्शनली, एपिडिडाइमिस नथिंग टू डिस्क्राइब फंक्शनली. It just carries the sperms along its way, nothing more. Nothing to explain about vasa, differentia. Ejaculatory duct बता दिया. Now प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमाइनल वेसिकल, काउपर्स ग्लैंड, इनका सिक्रीशन हमने नहीं पढ़ा कि वो क्या सिक्रीट करते हैं, तो दैट वी नीड टू डिस्क्राइब, राइट. यूरेथ्रा का फंक्शन सिर्फ कैरी करना है, वो बता दिया. पेनिस का इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा, that we need to describe. So what is our motive for today's class? At least to complete this thing, detailed discussion about seminiferous tubules and its internal structure. Getting the thing? Okay, let's start with seminiferous tubule. To make the idea more clear, I will again just repeat the scenario that we already described. क्या है ये? बहुत सारे कंपार्टमेंट्स जो टेस्टिस के अंदर पाए जाते हैं, ये ट्यूनिका, वेजाइनालिस वगैरह. एंड देर आर n number of such compartments called testicular lobules, and inside each lobule there are tubes which are closed on one end and open on other. This is open end, this is closed end. There are tubules like this in every compartment, 1 to 3 in number on an average. So total number of seminiferous tubules per testis comes out to be around 750 if you go by 250 compartments on an average, and 250 into 3 if each compartment has 1 to 3. so अगर हम अपर साइड भी ले तो लगभग कितनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पर टेस्टिस मिलेंगी? 600 से 800 की रेंज में. 750 इज एन एवरेज नंबर, क्योंकि फिक्स आंकड़ा तो कुछ है नहीं, तो रेंज यू शुड नो. अब रेंज याद रखने की ज़रूरत नहीं है. 250 कंपार्टमेंट्स है, हर कंपार्टमेंट से 1 से 3 के बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, तो एवरेज आंकड़ा आ जाता है 500 से 750 800. तो वो रेंज वाला ऑप्शन जो भी होगा वो तुम चूज करोगे. अगर सवाल आया कि हाउ मेनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर फाउंड इन अ सिंगल टेस्टिस, इट शुड बी एनीवेयर बिटवीन 500 to 800 ऑन एन एवरेज. किस हिसाब से? तो भाई 200 से 300 कंपार्टमेंट्स है और हर कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है. इट्स अ सिंपल क्वेश्चन ऑफ मल्टीप्लिकेशन. You will get the average answer, right? So हम इनमें से एक कंपार्टमेंट का अगर टीएस लें, टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन, अगर हम इनमें से एक कंपार्टमेंट का क्या ले, ट्रांसवर्स सेक्शन ले, तो हमको दिखेगा कि there is a compartment, this is a compartment outline, and there are what? These are seminiferous tubules, and this is testicular lobule. बात समझ में आई? ये रेड वाला पोर्शन ये है बाहर वाली चीज़, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल, और इसके अंदर 1 2 3 3 क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. इज इट ओके? और यहाँ क्या है?
टिश्यू फ्लूइड या जिसको हम मोर प्रॉपरली कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सिनेरियो को समझो बहुत प्रॉपर तरीके से। हमने जिस चीज का टीएस यहां पे निकाला है वो चीज क्या है? सेक्शन ऑफ टेस्टिकुलर लोब्यूल, सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल। अगर एक सिंगल टेस्टिकुलर लोब्यूल को हम देखें तो उसके अंदर हमको लगभग कितने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स मिलती है? 3। 1 से 3 तो हमने 3 लिया है, तो ये रहा 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में इस सफ़ेद वाली जगह पे क्या है? या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर और कंपार्टमेंट के अंदर क्या है? सेल तो बाद में आएगी, सेल भी है, लेकिन पहले क्या समझो, इधर क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये थोड़ा सा प्रॉपर नाम है जिसको कॉमन भाषा में तुम टिश्यू फ्लूइड कहते हो, है ना? और वही टिश्यू फ्लूइड अगर लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाए तो क्या बन जाता है? लिम्फ बन जाता है, ये तो तुम जानते हो, राइट? अगर ब्लड में हो तो प्लाज्मा कहलाता है। ब्लड एज अ टिश्यू अगर हम माने तो ब्लड का फ्लूइड क्या है? प्लाज्मा। ब्लड को अगर हम टिश्यू माने, जो कि है कनेक्टिव टिश्यू है ब्लड, तो उसका फ्लूइड स्पेशली प्लाज्मा कहलाता है। अगर वो ब्लड कैपिलरीज से बाहर आ जाए तो टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है, और अगर यही लिम्फेटिक कैपिलरीज में चला जाए तो लिम्फ कहलाता है। दैट्स वाई हम डिफाइन करते हैं ना, लिम्फ इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ ब्लड प्लाज्मा विच इन टर्न इज अ पार्ट ऑफ टिश्यू फ्लूइड करते हैं ना, क्योंकि ये आवागमन इनका चलता रहता है। इज इट ओके? तो ये कहाँ का इंटरस्टिशियल फ्लूइड है? टेस्टिस के अंदर का कंपार्टमेंट, टेस्टिस का ही हिस्सा है ना। तो दिस इंटरस्टिशियल फ्लूइड इज बेसिकली प्रेजेंट इनसाइड टेस्टिस एज एन ऑर्गन। इज इट ओके? सो अब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या है वो डिटेल हमको जाननी है, क्योंकि एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर जो है वही बाकी सब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर मिलेगा। गेटिंग द थिंग? सो हम इसका भी एक सेक्शन अगर पढ़े, जैसे फॉर एग्जाम्पल इतना, ठीक, ये क्या है? कंपार्टमेंट। इस कंपार्टमेंट का अगर हम एक सेक्शन पढ़े इतना, तो इसकी अलग डायग्राम कैसे निकलेगी? ये रहा तुम्हारा कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट का सेक्शन, मतलब ये वाला हिस्सा, और ये तुम्हारा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ठीक। इसके बाहर ये जो भी हम डॉटेड फॉर्म में निकाल रहे हैं, ये क्या है? दिस इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अगर मैं यहाँ पे एक और ऐसा कुछ निकालूं तो ये क्या है? दूसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये क्या है? तीसरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो इधर थी, राइट। और यहाँ पे इनके बीच में, मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में कौन भरा हुआ है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। और इस टिश्यू फ्लूइड के अंदर भी सेल्स पाई जाती है, यूजुअली 3 के बंच में, जिनको हम जानते हैं क्योंकि हमने हार्मोनल रेगुलेशन में इनको थोड़ा बहुत पढ़ा है। तब भी डायग्रामेटिकली जहाँ तक मुझे याद है हमने इनको पढ़ा था कि देयर लाइज अ सेल्स कॉल्ड Leydig cells within the interstitial fluid found outside
seminiferous tubules inside testes. So as you can see, the same thing is repeated here. This is a compartment belonging to testes, and inside this compartment there are seminiferous tubules, and outside seminiferous tubule and inside compartment there is a fluid called interstitial fluid, additionally containing the bunch of cells which lies in fluid but outside seminiferous tubules. Okay, so अगर हम इनको नाम दें तो this is what? Testicular lobule. This is what? Interstitial fluid. These cells which lie within interstitial fluid but outside seminiferous tubules are called Leydig cells, to be specific, or interstitial cells. No rocket science why they are called interstitial cells, as they lie in interstitial fluid. They are called interstitial cells. So now you may recall ICSH. What was the full form for ICSH hormone secreted by pituitary of the males? What was the full form for ICSH? Interstitial cell stimulating hormone. See this? That hormone must be stimulating which cells? These cells, interstitial cells, because these are the cells that secrete testosterone. Now you have a clear idea what testosterone is already. Yes or no? Yes. So tell me, what is testosterone? It's an androgen. What is androgen then? Yes. It is done much before. When there was no corona. क्या है भाई टेस्टोस्टेरॉन? टेस्टोस्टेरॉन एक स्टेरॉइडल हार्मोन है जिसको हम एंड्रोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मेल सेक्स हार्मोन है. टेस्टोस्टेरॉन इज अ मेल सेक्स हार्मोन secreted by testes overall. But what exactly secretes testosterone inside testes? Leydig cells. Leydig cells are the cells that produces male pause. Okay, Leydig cells are the cells that produce male sex hormone. Interstitial cells is their alternate name. You have a question here. Which cells or which of the following components secrete male sex hormone or testosterone is secreted by? You have a direct answer as Leydig cells or interstitial cells, which are located within the testes but not inside seminiferous tubules. What I said? These cells are located within the testes but not inside seminiferous tubules. They are located outside seminiferous tubules in a interstitial fluid that surrounds each seminiferous tubule within each testicular lobule. कहानी बिल्कुल फिक्स है. 200 से 250 से 300 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स हैं. हर लोब्यूल के अंदर 1 से 3 ऑन एन एवरेज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है और हर टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर ये वाला फ्लूइड है. और हर फ्लूइड में कौन सी सेल्स है? लेडिग सेल्स, जो एक ही काम करती है प्राइमरीली, क्या सिक्रीट करने का? टेस्टोस्टेरॉन या मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करने का. अब सेक्स हार्मोन किसे कहा जाता है? सेक्स हार्मोन उस हार्मोन को कहते हैं जो ग्लिच टेक्निकल ग्लिच. कंटिन्यू. ओके. नेटवर्क डिसाइड करता है आजकल पढ़ाना है कि नहीं. क्या दिन आ गए. हो गया.
पबजी खेलते टाइम नहीं लटकता क्या नेटवर्क? बाहर आ जाता है बाइक पे नेटवर्क? चलो अच्छी बात है भाई। कहाँ थे हम? कहाँ थे? नहीं नहीं, कुछ तो बता रहा था मैं। हाँ हाँ, मेल सेक्स हार्मोन या फीमेल सेक्स हार्मोन किस भरोसे कहा जाता है? तो देखो हमने शुरुआत में क्या टॉपिक पढ़ा इस चैप्टर में, लिस्ट पढ़ी थी ना पूरी, किसकी थी वो? भूल गए क्या पहली क्लास? आज 5वीं क्लास है इस चैप्टर की। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलने से काम नहीं चलेगा ना। कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स? हाँ, मेल एंड फीमेल एसेसरी कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो या फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो। तो व्हाई डू यू थिंक you have male accessory character and why do you think you have female accessory characters in you? Or why should I think that I have male accessory characters in me? Because I have proper levels of testosterone inside me, or you have too. This small is coming. It is because of testosterone levels are rising. बच्चे जवान हो रहे हैं। ठीक है, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है? हर कोई एक फेज से दूसरे फेज में जाता है। पिंपल्स भी आए होंगे, आजकल नहीं आते, जो भी है टेक्निकलिटीज़ में नहीं जाते हम। बट बात यह है कि वाई डू यू हैव द स्मॉल मस्टैच एंड इन सम डेज यू विल हैव अ बियर्ड टू पॉसिबली? वाई डू यू थिंक? इट इज़ बिकॉज ऑफ प्रॉपर लेवल्स ऑफ sex hormone within your body, that is testosterone, which is continuously secreted by the primary sex organ in your body, that is testes. Particularly which component of it? Leydig cells. Why do you think कि your body or my body, if I think, will have a proper process of spermatogenesis? Sperms are properly formed because of testosterone. Why the female should think that they have a proper production of egg? Because they have a regular menstrual cycle. That means egg is being produced. Why this process is in cycle or properly going on? Because of their primary or female sex hormone, that is estrogen, alongside progesterone. Right? The same thing for male is done by testosterone and same thing for female is done by estrogen and progesterone. Getting the thing? इसीलिए हम इन हार्मोन्स को रेस्पेक्टिव सेक्सेस में सेक्स हार्मोन कहते हैं। हम किसी भी हार्मोन को उठा के सेक्स हार्मोन कहते हैं क्या? नहीं। ओके, सो दैट्स व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्स हार्मोन। Getting the thing? If it is the concept, then please remove it from your mind that a hormone that stimulates the process of sex is a sex hormone. It's nothing like this. Sex hormone is a hormone that is responsible for formation or production of characteristics that are particular to a sex. That is what you call male accessory characters and female accessory characters, and respective process of gametogenesis, means spermatogenesis in males and oogenesis in females will not be proper if there is any defect in the production of sex hormone. Getting the thing? Is it okay? So that's the point about sex hormone. Why this point came? It's because we are discussing Leydig cells, that are cells which secrete testosterone, the male sex hormone in case of males. Where they lie? Outside seminiferous tubules, inside interstitial fluid. Getting the thing? Concept clear? Now we should move on to this thing, seminiferous tubule. Is it okay? तो हम अभी ग्लिच
हो गया। अगर ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो फिलहाल हमने इस डायग्राम में इसको कंपार्टमेंट के अंदर प्रेजेंट ट्यूब्यूल के फॉर्म में निकाला है। अब हम इसको अलग निकाल के पढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाहर क्या होता है ये तो हमने यहाँ डिस्क्राइब कर दिया। अब इसको हम डिस्क्राइब करते हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज नॉट अ हॉलो ट्यूब ना, इनसाइड देयर आर मेनी सेल्स। सो सबसे पहले नंबर आता है पहली लेयर ऑफ सेल्स का। हम बहुत ही रेक्टिफाइड स्ट्रक्चर निकाल रहे हैं। रेक्टिफाइड मतलब सिंप्लीफाइड, ठीक है। देर आर कॉलमनर सेल्स। कॉलमनर समझते हो ना, कॉलम लाइक, लंबी ऊंची इमारत जैसी सेल्स बीच बीच में। किसके बीच बीच में? तो एक कॉमन लेयर के बीच बीच में, जैसे ये, दिस इज अ क्यूबॉइडल सेल्स, ओके। स्क्वैमस मतलब फ्लैट, कॉन्सेप्ट पता होगा शायद। स्क्वैमस सेल्स मतलब फ्लैट सेल्स, क्यूबॉइडल मतलब ऐसे स्क्वायर शेप, और कॉलमनर मतलब ऐसी लंबी ऊंची सेल्स, राइट। 3 तरह की इपिथेलियल सेल्स पाई जाती है, फ्लैट, क्यूबॉइडल एंड कॉलमनर, स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब देखो मामला थोड़ा सा क्रिटिकल है, इधर ध्यान से समझो। इस डायग्राम को दिमाग से निकालो मत, लेकिन ये डायग्राम हमको निकालनी पड़ेगी यहाँ से नाम देने के लिए। तो एक बार देख लो क्या है सिनेरियो। इस चीज़ को हम डिटेल में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। इस चीज़ के बाहर मतलब इसके बाहर कौन है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में कौन है? लीडिक सेल्स, जिनका महिमा हम अभी अभी पढ़ चुके हैं कि वो क्या करती है? टेस्टोस्टेरॉन सिक्रीट करती है, मेल सेक्स हार्मोन सिक्रीट करती है, ओके। नाउ जस्ट फोकस ऑन व्हाट लाइज इनसाइड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सो सी, दिस इज कॉल्ड जर्मिनल इपिथेलियम। सबसे बेसिक लेयर जो किसके अंदर पाई जाती है? हर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। उस बेसिक लेयर ऑफ सेल्स को, जो कि क्यूबॉइडल सेल्स है स्ट्रक्चरली, हम कौन सी लेयर कहते हैं? जर्मिनल इपिथेलियम। इज इट ओके? व्हाई? एज इट कंसिस्ट ऑफ स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। अब इस पे ध्यान दो बहुत अच्छे से, क्योंकि जब हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ेंगे तो ये बड़ा काम आने वाला है। अगर इसको तुमको जानकारी नहीं है तो स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो बेसिक लेयर कहाँ पाई जाती है? ओरिजिनल लेयर ऑफ सेल्स कहाँ पाई जाती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। उस लेयर की को नाम क्या है? जर्मिनल इपिथेलियम। जैसे देखो कैपिलरी अगर होती ना ये, तो हम इसको एंडोथेलियम कहते, याद है ना। अगर ये ब्लड कैपिलरी होती तो इसको हम एंडोथेलियम कहते। और ये क्या होती? BM मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे भी सेम है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, लेकिन इपिथेलियम कौन सा है? जर्मिनल इपिथेलियम। जर्मिनल इपिथेलियम क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ specialized cells called spermatogonial cells. These are diploid cells. कैसी सेल्स होती है ये? Diploid cells which gives rise to sperms in future. मतलब अगर आपसे कोई पूछे या सवाल ऐसा कभी एनकाउंटर हो कि विच सेल्स अल्टीमेटली गिव्स राइज टू स्पर्म्स, सो योर आंसर शुड बी spermatogonial cells, or the parent cells from which
sperms are formed? If this is the question, your answer should be spermatogonial cells, as spermatogonial cells is the name given to which cells? The basic layer of cuboidal cells that lies inside seminiferous tubules, which are diploid by nature. No doubt they should be diploid because they will undergo meiosis to give rise to haploid sperms. अभी meiosis हुआ कहाँ? अभी तो ये बेसिक लेयर है ना, तो इनको स्पर्म्स नहीं कहते, इनको क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स. और इंडिविजुअल सेल को कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया. बहुत सारी है ना, तो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स. इंडिविजुअल सेल को क्या कहेंगे? स्पर्मेटोगोनिया. गेटिंग द थिंग? ये स्पर्मेटोगोनियल सेल्स गिव्स राइज टू मेनी इंटरमीडिएट स्टेजेस. ओके, अब इन इंटरमीडिएट स्टेजेस को हम पढ़ेंगे इन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. जैसे एक इंटरमीडिएट स्टेज का मैं यहाँ नाम लिख दूं, स्पर्मेटोगोनियल सेल गिव राइज टू primary spermatocyte. Primary spermatocyte then undergoes many different stages to ultimately give rise to, see this, these are maturing sperms. I will not call them sperms. More particularly, they should be called maturing sperms because they are being matured on the surface of specialized cells that lies in between spermatogonial cells. If you see the diagram, spermatogonial cells के बीच बीच में ये वाली cells है जो रेड में कलर्ड है. इन cells को हम कहते हैं Sertoli cells, or as they nourish the sperms, they are also called as nurse cells. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जर्मिनल इपिथेलियम के बीच बीच में पाई जाने वाली कॉलमनर सेल्स को क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स. इज इट ओके? और इनका काम क्या है? एज यू कैन सी, स्पर्म्स को नरिशमेंट प्रोवाइड करना या स्पर्म को मैच्योर कराना, ये इनका काम है. यू कैन सी द स्पर्म्स ओवर देयर सरफेस. अब ये स्पर्म्स कैसे बने ये हमने नहीं पढ़ा है, इसको हम पढ़ेंगे एज अ सेपरेट प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. कॉन्सेप्ट यहाँ इतना सिर्फ समझना है कि भाई कैसे स्पर्म्स बनते हैं. तो स्पर्म्स बनते हैं फ्रॉम विच सेल्स? स्पर्मेटोगोनियल सेल्स दैट लाइज एज अ पार्ट ऑफ जर्मिनल इपिथेलियम इनसाइड ईच seminiferous tubule, and apart from this spermatogonial cells, in between there are which cells? Sertoli cells or nurse cells, which will further function for nourishing the sperms when they are formed. Is it okay? समझ में आई इतनी बात? क्लियर? अब पूरा सिनेरियो अगर हम देखें तो ये रही डिफरेंट स्टेजेस में प्रेजेंट स्पर्म बनाने वाली सेल्स, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली नर्स और सर्टोली सेल, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये पूरा मिला के एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर अगर हम देखें तो यहाँ इंटरस्टिशियल फ्लूइड और इधर कौन सी सेल्स प्रेजेंट है? लीडिक सेल्स. और इसके आजू बाजू सराउंडिंग में कौन प्रेजेंट है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड. और ये सब किसके अंदर प्रेजेंट है? ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर. गेटिंग द पॉइंट? और ये भी बता दूं, जो कि हम स्पर्मेटोजेनेसिस में फिर से रिपीट करने वाले हैं, कि इस जर्मिनल इपिथेलियम में प्रेजेंट हर एक स्पर्मेटोगोनियल सेल, इस जर्मिनल इपिथेलियम में प्रेजेंट हर एक स्पर्मेटोगोनियल सेल केपेबल होती है टू अंडरगो मियोसिस इवेंचुअली एंड गिव राइज टू sperm. A single spermatogonial cell by the rule of meiosis can give rise to how many viable sperms?
functional sperms 4. Meiosis gives rise to 4 cells. ये नियम एंजियोस्पर्म्स के मामले में मेल में लागू नहीं होता कि फीमेल में? फीमेल में 4 मेगास्पोर्स में से 3 डिजेनरेट हो जाती है और एक ही फंक्शनल बचती है, तो इधर भी वैसा ही है. ह्यूमंस में भी एक स्पर्मेटोगोनियल सेल से मेल्स में 4 स्पर्म्स बन सकते हैं, बट फीमेल्स में एक oogonal सेल जो कि स्पर्मेटोगोनियल सेल का पैरेलल है. जैसे मेल में स्पर्मेटोगोनियल सेल तो फीमेल में oogonal सेल. तो एक oogonal सेल मियोसिस के थ्रू 4 एग्स नहीं बनाती, एक ही बनाती है. गेटिंग द थिंग? तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स है, मतलब फंक्शनली कॉमन पॉइंट्स. ये सब 1 बाय 1 आएगा. हमारा आज के लिए जो कंसर्न था वो पूरा हुआ. किस चीज़ को पढ़ना? इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल और उसके बाहर का रीजन. ठीक है. द नेक्स्ट टाइम वी मीट वी विल बी डिस्कसिंग द ग्लैंड्स. हाउ मेनी आर देयर? 3. टोटल नंबर इज 5 बट टाइप्स आर 3. 2 seminal vesicles, 1 prostate gland and 2 Cowper's gland. So we will discuss in detail what they secrete and how their combined secretion along with the sperms that are formed inside testes forms a semen. What is semen and its ultimate composition we will learn after we are done with glands. And meanwhile somewhere we will also discuss the internal structure of penis. Is it okay? ये पढ़ने के बाद हम लायबल बनते हैं पढ़ने के लिए कौन सी प्रोसेस? स्पर्मेटोजेनेसिस. Is it okay? So that's how things will go. As far as today's class is concerned, we are right now done. We'll meet tomorrow with the next topic that we have just decided. Thank you.